Right, thank you so much, Ajay, for all those details on that story. We are shifting our attention now towards Telangana. As we come closer to 2026, with just one major Maoist commander who is alive and active, Telangana DGP has spoken on the anti-Maoist operations across the country in 2025. And he has highlighted that 509 Maoist cadres have surrendered across Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Telangana. Let's in fact listen in. I have seen 509 Maoists surrendering out of which 483 cadres, Maoist cadres belong to Chhattisgarh, 24 belong to Telangana and one each from AP and Maharashtra. Out of these 509 cadres, there are top cadres like central committee members are also there, state committee members are also there. I don't think, because not only that they are surrendering, coming forward to surrender, they are also surrendering with weapons. That itself shows that now they have lost the sheen and they lost the momentum. So I don't think there is any. Joining us via the phone line is my colleague Raj Kiran with more on this. Raj, obviously we are coming to an end to 2025. However, this was a year when we saw a lot of action against Maoists. We saw a lot of Maoist cadres actually surrender also. So a big achievement for the government involved over here. Yes, Shivani, we can say a big achievement for the police in 2025 regarding the Maoist surrenders in Telangana, especially Telangana. Yesterday in an annual roundup, addressing the press conference, Sivadar Reddy, the Director General of Police of Telangana, have conducted a press conference in which he stated that 509 Maoists have surrendered till now, in which 483 cadre belongs to the Chhattisgarh and 24 belongs to Telangana, and each one belongs to the Andhra Pradesh and Maharashtra. Out of 501 cadres, he also said there are also top cadre including central committee members and the select committee members. These are the people, big cadre also surrender before the police, and not just they have surrender, but they are also surrender with their weapons. And this is what he said in the press conference, and this he also said that this shows that they have lost their momentum. So I don't think there are going to be a regrouping of such again. And all the Maoists who has been surrendered in this 509 people are belongs to the active Maoist group. There is nothing like they are not active. They are active. They are doing on the combing operation which conducted by the Telangana, Andhra and Chhattisgarh. 3 police combinedly done the many operations in which they have surrendered 509 till now. So it's a big achievement, we can say, by the Telangana government. Why? Because these 509 Maoists who has been surrendered before the police belongs to the Telangana. They have surrendered before the Telangana police. So this is, we can say, a big achievement to the Telangana. Sure. All right. Thank you so much, Raj, for all those details. We are turning our attention now towards some other news that's coming in. While the dominance of social media platforms and mobile phones is growing rapidly across the globe, radio is emerging as a powerful weapon in the battle against Maoism in Chhattisgarh. Along with entertaining, informing and educating people, radio is playing a pivotal role in changing the mindset of people in restive villages by creating awareness among them about the welfare schemes being run by the government at the centre as well as the state. Meanwhile, Jitpalli's forward operating bases commander has spoken on this. Let's in fact listen in. सबसे पहले तो यहाँ की जो जनता है वो बहुत सालों से मेन स्ट्रीम से कट ऑफ रही है। उनके पास सरकारी योजनाएं बहुत मुश्किल से पहुँच पाई है। तो रेडियो देने का एक मकसद ये है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार के द्वारा जो भी ग्रामीणों के लिए, यहाँ के ट्राइबल्स के लिए जो भी चीज़ें, नई चीज़ें आ रही है, उनके बारे में अवेयर होना। और दूसरा क्या है कि मेन स्ट्रीम से यहाँ पे चूँकि लाइट भी बहुत सालों से नहीं रही है, तो इनके पास जो है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी चीज़ें नहीं थी। तो रेडियो देने का मतलब ये है कि ये लोग मेन स्ट्रीम
से भी जुड़े रहें और आपस में 10 लोग बैठ करके एक साथ जो गांव के लोग इधर उधर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं उन स्थानों पे रेडियो बजा करके विभिन्न तरह के रंगमंच के कार्यक्रम वगैरह सुन के सरकार की नीतियों को एक अपने समाचार के माध्यम से सुन करके ये सरकार की नीतियों से भी अवगत होते हैं और साथ में एक ग्रुप समूह बैठ करके मनोरंजन भी करते हैं। All right, joining us live on the broadcast is my colleague Sudhir Verma with more on this. Sudhir, obviously हम ये बात कर रहे हैं कि एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब जो रेस्टिव विलेजेस हैं उनके लिए, और इस मामले में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नक्सलिज्म के खिलाफ जो सरकार है और केंद्र सरकार है वो कहना कि हर संभव प्रयास कर रही है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, और ऑपरेशन में बड़ी सफलताएं भी जो है कहना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो तमाम सुरक्षा बल है उनको लगातार मिल रही है। परंतु अब मेन उद्देश्य जो है वो कहना कि ये बन जाता है कि वहाँ के स्थानीय लोग जो है उनको किस प्रकार की सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाए ताकि वो योजनाओं का फायदा उठा सके। देखा जाए अगर बात करें बस्तर की, तो बस्तर एक लंबे समय से नक्सलिज्म से जुड़ा हो रहा है। ऐसे में कई ऐसी योजनाएं हैं। अगर बात करें वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान स्थिति कई ऐसे क्षेत्र है बस्तर के जहां पास आज तक बिजली जो है नहीं पहुंच पाई है। सड़कें आज जैसे सालों पहले थी आज भी वैसी ही सड़कें हैं। साथ ही साथ संसाधनों की बात करें तो रेडियो और टीवी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी जो है वो कहीं ना कहीं वहां तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से जो बस्तर है वो कहीं के पिछड़ा अभी तक बना हुआ है। परंतु सरकार की योजना यह है कि बस्तर किस प्रकार से जो मेन स्ट्रीम उससे जोड़ा जाए, तमाम योजनाएं उन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। और रेडियो जो है हमने सबने देखा है जिस प्रकार स्वतंत्रता के समय रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री और साथ राष्ट्रपति जो है संवाद करते थे जनता के बीच, जनता के बारे में, जनता के जो योजनाएं थी उनको बारे में जानकारी देते। तो कहना कि वही जो फॉर्मूला जो है वो कहना कि प्रदेश सरकार जो है उठाने जा रही है। साथ मान सकते कि आने वाले समय में कोई बड़ी योजना जो है रेडियो के माध्यम से बस्तर के लिए देखा जाए तो बस्तर में अगर देखा तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर तमाम प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को किस प्रकार से रोजगार से जोड़ा जा सके, ऐसे तमाम जो प्रोग्राम्स है वो शायद सरकार चला रही है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी फोकस जो है वो कहीं ना कहीं बस्तर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बस्तर एक और जहाँ नक्सल मुक्त हो रहा है तो वहीं पर्यटन की किस प्रकार से जो संभावनाएं वो बढ़ाई जाए, साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय लोग जो है युवा जो किस प्रकार से रोजगार किया जाए, ऐसे तमाम विषयों पर सरकार जो है लगातार मंथन कर रही है। और साथ ही रेडियो के माध्यम से सरकार की योजनाओं किस प्रकार से बस्तर के लिए क्रियान्वित किया जाए, बस्तर के लोगों को किस प्रकार से योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जा सके ताकि उन योजनाओं का लाभ ले सके। इसी के चलते जो है रेडियो की शुरुआत वहाँ की गई। और साथ ही साथ रेडियो के माध्यम से एक एंटरटेनमेंट का साधन भी जो है कहीं ना कहीं दिया गया, क्योंकि देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमान देखा गया कि लोग जो है काम के चलते व्यस्तता हमेशा हर वक्त रहता है। ऐसे में रेडियो के माध्यम से लोगों को एक साथ एक जगह जोड़ने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। साथ ही साथ योजनाओं का लाभ देकर योजनाओं का सीधा तौर पर जो असर है वो कहना कहीं बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जी सुधीर, और जब हम ये स्कीम्स को भी देखते हैं ये ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 2025 में तो हमने देखा भी बहुत सारे जो माओइस्ट के कैडर्स हैं उन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया क्योंकि उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स है वो उनको बेनिफिट ही करेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बीते दिनों इस प्रकार से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें अगर बात करें सबसे बड़े नक्सली आत्मसमर्पण की तो जगदलपुर में जिस प्रकार से 110 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया, विकास की मुख्य धारा से जुड़े नक्सल का रास्ता छोड़ा। और इसके बाद लगातार न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी जो है नक्सलवाद से तमाम जो बड़े कैडेट्स है वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर भी आए। और जिस प्रकार से अगर बात करें बस्तर की, तो बस्तर में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर बिजली नहीं पहुंची हुई है। बीते दिनों एक ऐसी तस्वीर के सामने आई थी जहां बस्तर में जब ट्रांसफार्मर लगाया गया था गांव में तो गांव वालों ने खुशियां मनाई थी। तो ऐसे में लगातार इस प्रकार की तस्वीरें जो है साफ तौर पर बस्तर से देखी जा रही है। बस्तर में एक बड़ा कारण ये भी है जो देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से काफी संभावनाएं बस्तर में, कई जैसे झरना है, कई जैसे जंगल है, साथ साथ वन संपदा से भरा हुआ बस्तर, बस्तर को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी कहना कि सरकार जो है डेवलप करने के लिए हो रहा है। साथ का आने वाले समय में देखा जाएगा कि बस्तर में कितना जो पर्यटन है वो फैलता है। और साथ ही साथ जो विकास की बातें सरकार करती है और विकास से जुड़ने की बात ग्रामीणों को करती है वो कहना कि कितना प्रभावी होता है। जी बिल्कुल सुधीर, हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर स्टोरीज।